Good day to all and a very warm welcome to my channel. My name is Harita Sadrani. I am explaining you State Board Standard 4 History subject. Today I am going to explain you the second part of lesson number 8, Defeat of Internal Enemies. So listen to it very carefully. If you like my explanation, do subscribe to my channel. My channel name is Harita Sadrani and click on the bell icon for the notification. So let's begin with the explanation now. Lesson number 8, Defeat of Internal Enemies. In the first video or the first part of this lesson, I have explained you all till here. So today I am going to explain you the remaining part of this lesson. But before going ahead, I will like to explain you what I have explained in the first part of this lesson. As we all know, the main aim of Shivaji was to establish Swaraj in the state of Maharashtra and to bring happiness to his own people. To establish Swaraj in Maharashtra, Shivaji had to fight with many enemies. These were some internal and external enemies. External enemies we all know. Who were there? Mughal Emperor, Adil Shah, Sindhis, Portuguese and Britishers. But at the same time, Shivaji had to fight with some internal enemies which were giving him trouble or which were coming in between in the process of establishing Swaraj, or they were against Shivaji's idea. So who were there? The some names given in your textbook are Khandoji and Baji Ghorpade. These were two Maratha Sardars who worked for Adil Shah. One was his own very close relative, his own brother-in-law, Shivaji's own brother-in-law, Bajaji Naik Nimbalkar. Okay, and the other one was his close relative, Sambhaji Mohite. These all were the internal enemies. Internal enemies means what? The enemies which are within your country, or very easy to understand, अपने अंदर के लोग जो या तो आपके रिलेटिव होंगे या फिर ऐसे लोग जो बाहर के नहीं, अपने घर के ही लोग. ओके, तो ऐसे लोगों के साथ भी शिवाजी को फाइट करनी पड़ी. We have learned, or we are going to read more about in deep one of such internal enemy, that is Chandrarao More of Javli. Chandrarao More of Javli was a Watandar or Sardar of Javli region. He was working for Adil Shah, and Adil Shah has given this More of Javli the title Chandrarao. Okay, Javli was an area in Maharashtra which was covered with a very thick forest, and there were many wild animals like tigers and lion. So it was very difficult for anyone to attack the Javli. But Shivaji had taken a step to attack on Javli and to conquer the Javli region. Lesson number 8, Defeat of Internal Enemies. In the first video or the first part of this lesson, I have explained you all till here. So today I am going to explain you the remaining part of this lesson. But before going ahead, I will like to explain you what I have explained in the first part of this lesson. As we all know, the main aim of Shivaji was to establish Swaraj in the state of Maharashtra and to bring happiness to his own people. To establish Swaraj in Maharashtra, Shivaji had to fight with many enemies. These were some internal and external enemies. External enemies we all know. Who were there? Mughal Emperor, Adil Shah, Sindhis, Portuguese and Britishers.
But at the same time, Shivaji had to fight with some internal enemies which were giving him trouble, or which were coming in the in between in the process of establishing Swaraj, or they were against Shivaji's idea. So who were there? The some names given in your textbook are Khandoji and Baji Khorpade. These were two Maratha Sardars who worked for Adil Shah. One was his own very close relative, his own brother-in-law, Shivaji's own brother-in-law, Bajaji Naik Nimbarkar, okay, and the other one was his close relative, Sambhaji Mohite. These all were the internal enemies. Internal enemies means what? The enemies which are within your country, और very easy to understand, अपने अंदर के लोग जो या तो आपके रिलेटिव होंगे या फिर ऐसे लोग जो बाहर के नहीं, अपने घर के ही लोग, ओके। तो ऐसे लोगों के साथ भी शिवाजी को फाइट करनी पड़ी. We have learned, or we are going to read more about in deep one of such internal enemy, that is Chandrarao More of Javli. Chandrarao More of Javli was a Watandar or Sardar of Javli region. He was working for Adil Shah, and Adil Shah has given this More of Javli the title Chandrarao. Okay, Javli was an area in Maharashtra which was covered with a very thick forest, and there were many wild animals like tigers and lion. So it was very difficult for anyone to attack the Javli. But Shivaji had taken a step to attack on Javli and to conquer the Javli region. Rebel and you will die. रिबल मतलब देशद्रोह अगर किसी ने किया, ओके, द एक्ट विच इज़ अगेंस्ट द कंट्री, तो आप मरोगे या आपको मार दिया जाएगा. ये लाइन शिवाजी ने यशवंत राव को पॉइंट आउट करके बोली है, क्योंकि यशवंत राव जावली के राज गादी पे बैठने के बाद वो ये वादा भूल गए कि शिवाजी को उन्हें कुछ एनुअल अमाउंट हैज़ अ ट्रिब्यूट देना है, और वो शिवाजी को सताने लगे या उन पे बार बार अटैक भी करने लगे. तो शिवाजी ने सोचा कि अब ये सही समय है कि मैं यशवंत राव को सबक सिखाऊं. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया वो अब हम पढ़ेंगे. रिबल एंड यू विल डाई. शिवाजी सेंड अ स्टिफ नोट टू यशवंत राव मोरे. सबसे पहले शिवाजी ने एक स्टिफ नोट, स्टिफ मतलब कड़क भाषा में, एक पत्र लिखा यशवंत राव मोरे. क्या था पत्र में? वॉट वॉज देयर इन द लेटर? लेट अस रीड. यू कॉल योर सेल्फ राजा, बट आई एम द राजा ऑफ दिस टेरिटरी. दिस किंगडम इज लॉर्ड शिवाज गिफ्ट टू मी, सो डू नॉट कॉल योर सेल्फ राजा. शिवाजी ने लिखा कि आप अपने आप को राजा समझते हैं, इस टेरिटरी के, इस राज्य के राजा समझते हो. किसे कहा? यशवंत राव को. क्योंकि मोरे फैमिली में जो कोई भी चंद्रराव बनेगा जावली का, वो खुद को राजा समझता था. तो शिवाजी ने कड़क शब्दों में लिखा कि आप अपने आप को राजा समझते हो इस टेरिटरी के, इस एरिया के, इस इलाके के, लेकिन मैं राजा हूँ इस टेरिटरी का. क्यों? क्योंकि ये जो राज्य है ये मुझे भगवान शिव से मिला हुआ आशीर्वाद है, भगवान शिव से मिला हुआ एक गिफ्ट है, एक तोहफा है. सो आप अपने आप को राजा मत बोलो, या आप इस एरिया के राजा नहीं हो. क्योंकि जैसे मैंने बोला, सभी चंद्रराव खुद को राजा मानते थे या खुद को वो राजा समझते थे. इन अ वेरी रूड रिप्लाई यशवंत राव सेड, यू आर अ राजा ऑफ ओनली yesterday. Who gave you this kingdom? If you come to Javli, you will be trapped. By the grace of God, I have received from Adil Shah the title of Raja. He has also, in his graciousness, given me a thorn
and the panoply of Raja. If you start any trouble here, you will be badly hurt. Okay? Now, जो शिवाजी ने लेटर लिखा था यशवंत राव को कि आप इस टेरिटरी के या जावली के राजा नहीं हो, मैं राजा हूँ क्योंकि मुझे ये भगवान से मिला हुआ वरदान है। इसके बदले में यशवंत राव ने भी बहुत कड़े शब्दों में रिप्लाई दिया। उन्होंने क्या कहा कि शिवाजी, यू आर दी राजा ऑफ एस्टरडे, आप कल के राजा हो, आप पुराने राजा हो। ओके, आपको राजा अब कोई मानता नहीं, ऐसे इसका मतलब है। और आपको ये राजगद्दी या आपको ये किंगडम किसने दिया, राज्य किसने दिया? अगर आप जावली में आए तो आप फंस जाओगे। ट्रैप्ड मतलब फंस जाओगे या आपको पकड़ लिया जाएगा। भगवान की दया से मुझे ये राजा का टाइटल आदिल शाह से मिला है और आदिल शाह की कृपा दृष्टि या उदारता के लिए, उदारता हम ये ग्रेशियसनेस बोल सकते हैं, उदारता। आदिल शाह इतने उदार थे मुझ पर, या उनकी उदारता इतनी है कि उन्होंने मुझे ये सिंहासन दिया। थॉर्न मतलब सिंहासन। ओके, और उनकी वजह से मैं ये राजा बना हूँ या मुझे ये राज्य मिला है। ओके, पैनोपली मीन्स थाट बाट, राजा का थाट बाट मुझे उनकी कृपा दृष्टि से, किसकी? आदिल शाह की। तो अगर आपने इस जावली इलाके में कोई भी हरकत की या जावली इलाके को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की तो आप बुरी तरह से, आपको हम हानि पहुंचाएंगे। यू विल बैडली हर्ट, मतलब युद्ध में आपको भारी नुकसान होगा या हम आपको बुरी तरह से हानि पहुंचा सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट रिप्लाइड शिवाजी गेव to Yashwant Rao for his letter. Okay, Shivaji replied, give up Javli and your pretensions to kingship. Come before your master with folded hands and accept his service. You will refuse to do so at the risk of your life. शिवाजी ने कहा यशवंत राव से कि जावली का अधिकार छोड़ दो। आपका जो अभिमान है, प्रिटेंशंस मीन्स अभिमान, किंगशिप मतलब राजा या राजत्व हम बोल सकते हैं, एक राजा होना। ओके, वो आप छोड़ दो। राजा का जो अभिमान है, राजगद्दी का जो आपको अभिमान है, उसे आप छोड़ दो, मेरे सामने आ जाओ। यहाँ मास्टर्स मतलब शिवाजी ने खुद को कहा है, कम बिफोर योर मास्टर्स, अपने सरदार के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहो और मेरी सर्विस को कबूलो, यानी कि मेरे साथ काम करना मंजूर कर लो, मेरे अंडर या मेरे साथ। अगर ऐसा नहीं किया, अगर आपने रेफ्यूज़, मना किया, तो शायद आपकी जान भी जा सकती है, एट द रिस्क ऑफ योर लाइफ। देखा कितने कड़े शब्दों में शिवाजी ने यशवंत राव को उनके पत्र का उत्तर दिया। The conquest of Javli was a difficult operation. It was covered with thick forest and protected by the impregnable Rairi fort. जावली को जीतना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, जैसे मैंने पहले बताया आप सबको, क्योंकि जावली एक घना जंगली इलाका था जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर थे। इसके लिए जावली की टेरिटरी को जीतना या उस पर जीत हासिल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन या कार्य था। और वहाँ पर घना जंगल था और वहाँ पर एक ऐसा किला था जिसका नाम था रायरी। याद रखना है आपको, एक अभेद्य किला था जिसको जीता नहीं जा सकता या जिसे जीतना बहुत डिफ़िकल्ट है। इम्प्रेग्नेबल मतलब जिसे जीता नहीं जा सकता। ये रायरी फोर्ट का पिक्चर जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, मोरे ऑल्सो हैड न्यूमरस फॉलोवर्स।
जो जावली के मोरे थे, यशवंत राव थे, उनके सपोर्ट में बहुत सारे दूसरे सरदार भी थे। कौन से होंगे वो सरदार पता है जो यशवंत राव को सपोर्ट करते होंगे? यस, यू आर राइट, वही सरदार होंगे जो शिवाजी को पसंद नहीं करते या जो शिवाजी के दुश्मन हैं, राइट। ऐसे सरदारों का उन्हें बहुत सपोर्ट था। किसे? यशवंत राव को। शिवाजी आफ्टर मेकिंग अ थरो प्रिपरेशन अटैक्ड जावली। शिवाजी को ये बात पता थी कि यशवंत राव अकेले नहीं हैं, उनको बहुत सारे दूसरे सरदारों का सपोर्ट है। इसीलिए शिवाजी ने पूरी तैयारी की और फिर जावली पे अटैक किया। यशवंत राव हेल्ड आउट फॉर अबाउट अ मंथ बट सफर्ड वेरी हैवी लॉसेस। यशवंत राव ने जैसे तैसे शिवाजी का सामना किया या शिवाजी के साथ लड़ाई की 1 महीने तक, और इस 1 महीने की लड़ाई में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। किसे? यशवंत राव को। ही देन एस्केप्ड टू रायरी अलॉन्ग विथ हिज फैमिली। यहाँ पे ही यशवंत राव बाद में जब उन्होंने देखा कि अब मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, शिवाजी तो बहुत ताकत के साथ लड़ रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब जावली को छोड़ के भाग जाऊंगा। कहाँ पर? रायरी। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि यशवंत राव मोरे जावली को छोड़ के कहाँ भागे? वेयर ही एस्केप फ्रॉम जावली, ही एस्केप टू रायरी फोर्ट। शिवाजी कॉन्कर्ड जावली एंड देन मार्च ऑन रायरी। शिवाजी ने जावली का इलाका अपने कब्जे में कर लिया, उस पर जीत हासिल की और फिर वो रायरी पे उन्होंने चढ़ाई की। मार्च मतलब युद्ध के लिए जाना है, ओके। तो मार्च मीन्स टू प्रोसीड फॉर वॉर। रायरी फोर्ट पे गए। ही लेड सेगे ऑन फोर्ट रायरी। उन्होंने रायरी को, शिवाजी ने रायरी को चारों ओर से घेर लिया। सेगे मतलब उसे चारों ओर से घेर लिया। यशवंत राव fought desperately for 3 months but he had to give up. यशवंत राव ने पूरी ताकत के साथ, ओके, पूरी ताकत के साथ या बहुत ही हिम्मत से शिवाजी के साथ 3 महीने तक लड़ाई की, बट आखिर में यशवंत राव ने हथियार डाल दिए। गिव अप मतलब ही डिसाइडेड ओके नाउ आई एम नॉट गोइंग टू फाइट एनी मोर, और या फिर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। फोर्ट रायगढ़। The conquest of Javli was very important landmark. This doubled the boundaries of Swaraj under Shivaji. Yashwant Raw's army too joined the force of Shivaji. The strong Rairi fort became a part of Swaraj. Shivaji was highly pleased to have this fort under his control. He changed its name to Raigad. Later on, he built a new fort on Bhorpaya hill nearby. It was named Pratapgarh. जावली की जो जीत थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण जीत थी. Why it was a very important victory or conquest of Javli? Yes, the reason was that this had increases the boundary of स्वराज. ये स्वराज्य की जो बाउंड्रीज थी उसे बढ़ा दिया गया या बढ़ गई, क्योंकि जावली एक बहुत बड़ा इलाका था. सेकेंड वॉज यशवंत राव आर्मी, यशवंत राव मिलिट्री और यशवंत राव फोर्स जॉइंड एट दी शिवाजी फोर्स. यशवंत राव की जो सेना थी वो शिवाजी के सैन्य दल में शामिल हुई. बिकॉज ऑफ दैट शिवाजीज पावर इंक्रीज. शिवाजी की जो पावर थी, ताकत और बढ़ गई, सैन्य दल की ताकत और बढ़ गई. द थर्ड वॉज दैट जो रायरी फोर्ट था, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट ऑफ रायरी बिकेम द पार्ट ऑफ स्वराज. एंड ये सब जो अचीवमेंट्स हुई या जो सब जीत हासिल हुई, इसके कारण शिवाजी बहुत खुश थे, प्रसन्न थे. प्लीज़ मतलब खुश. लेटर ऑन बाद में शिवाजी ने इस रायरी फोर्ट का नाम चेंज करके रखा रायगढ़. देखो ये जो पिक्चर जो मैंने पहले बताया था कि ये रायरी फोर्ट है, राइट. लेकिन जब इसको कैप्चर किया गया, शिवाजी ने इसको
जीत हासिल की या इसको जीता, तब इसका नाम चेंज करके फोर्ट रायगढ़ रखा गया। इसलिए यहाँ पर फोर्ट रायगढ़ लिखा है। ओके। लेटर ऑन ही बिल्ड अ न्यू फोर्ट ऑन द भोरपया हिल्स। फिर उसके बाद में कुछ समय के बाद शिवाजी ने एक और किला बनाया नज़दीक के पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी का नाम था भोरपया, और उस किले का नाम क्या रखा? प्रतापगढ़। With this, I come to an end of my explanation of this lesson number 8. Hope you have understood what I have explained you. So please do subscribe to my channel, share and like my videos. With this, I will like to say bye to all. Take care.